Hello students, and today I'm going to discuss with you importance and limitation of management accounting. This is the fourth lecture of management accounting. So as I discuss with you the various aspects, concept and meaning and definitions of management accounting, on the basis of these there are lots of importance and some limitations of management accounting as also theirs. So in the present complex business world, as you know very well, the business management accounting has become an integral part and useful tool of management system. And the reports prepared and data edited on the basis of management accounting become the foundation of successful operation of management activities. So on the basis of reports and data edited, we can say that management accounting become has a foundation of the particular managerial activities of the operation of the business. And management accounting not only increase the efficiency of the management, but it also improve the efficiency of employees. तो हम ये देख सकते हैं कि केवल एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो डेटा और जो भी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, रिपोर्ट्स का यूज करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ताकि इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजरल डिसीजंस जो है पर्टिकुलरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा लिए जा सकें. So it also improve the efficiency of employees also. And the role of management accounting as a tool of management can be studied as the different importance or role or significance, we can say. So there are different terms, but mainly the importance of management accounting is there. So there are different importance, role and significance of management accounting. The first point we discuss with you, the increase in efficiency. So basically management accounting increase the efficiency of the various business activities. हम देखते हैं कि बहुत सारे जो डेटा रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम करते हैं वो प्रॉपरली जो है, इसके कारण जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और डिसीजन मेकिंग के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है. इसलिए इससे हम कहा जा सकता है कि इट हेल्पफुल टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द particular organization. The target of different departments are fixed and in advance on the basis of forecasting and planning, and later on the actual performance is compared with them. तो जो अगर हमें एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहले हम फोरकास्टिंग और प्लानिंग करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग देन वी कंपेयर द विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो है आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज होती है. यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी इंक्रीज की जा सकती है. दिस प्रोसेस हेल्प्स इन मेजरिंग and increasing the efficiency of the enterprises and all the organizations. Moreover, it also encourages the optimum use of capacities of man and machine engaged in the concerns and also there. तो यहाँ पर केवल हम efficiencies of employees, efficiency of workers की बात नहीं करेंगे. यहाँ पर man machine दोनों की efficiencies increase होती है if we analyze effectively the role and the reports on the basis of financial reports, on the basis of income and एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स एंड अदर थिंग्स. तो अगर हम बात करें तो इससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव हो सकती है. सेकंड थिंग है प्रॉपर प्लानिंग. सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इम्पोर्टेंस. प्रॉपर प्लानिंग बेसिकली प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट का जो होता है, एंड किसी भी सिस्टम का, जो चाहे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो या केवल मैनेजमेंट हो किसी संस्था का, तो इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग इट्स प्रॉपर. तो अगर हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके चलते हैं, किसी भी सिस्टमेटिक तरीके को हम यूज़ करते हैं, सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो हमारा सिस्टम है डेवलप करते हैं, वो उसकी उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड मैनेजमेंट इज आल्सो एबल टू प्लान द वेरियस एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ये भी हम देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी जो प्लानिंग्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही करते हैं. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट सेपरेट बजट्स आर प्रिपेयर्ड
फॉर ईच डिपार्टमेंट। यहाँ पर बजट जैसे होता है वो सेपरेटली हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग बजट प्रिपेयर किया जाता है। And then a master budget is prepared for whole organization on the basis of information provided by management accountant. The workload of each and every individual is fixed in advance, and then the activities of concern are planned in the systematic manner. तो अगर हम देखें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो एज ए अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आपको वर्कलोड जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट का वो और इंडिविजुअली हम उनको डिवाइड कर देते हैं प्रॉपर तरीके से इन एडवांस। तो जो है हमारा काफ़ी इफेक्टिवली कई सारी एक्टिविटीज़ को रन कर सकता है। तो प्रॉपर प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में, and all those things. And the third thing is measurement of performance. So this is a third important point, the measurement of performance. तो basically measurement की हम जब बात करते हैं तो management accounting also plays an important role in the measurement and management of works performance through the techniques of standard costing, budgetary control, and etc. So there are different techniques which we use in the measurement of the performance particular department or different individuals and other parties or other, like the standard costing is another technique of costing. To analyze the cost, and budgetary control is an important technique. तो जहाँ पर बजटरी कंट्रोल की बात करते हैं वहाँ हम देखते हैं कि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के बजट्स को प्रिपेयर किया जाता है, उसको ऑन द बेसिस ऑफ दीज बजट्स वी प्रिपेयर द मास्टर बजट एंड देन वी एनालाइज दीज बजट्स फॉर getting the proper activities, running the proper activities and day-to-day activities and all that things. And costing की अगर हम बात करें, standard costing is another important aspect जिसमें कि हम cost को analyze करते हैं और on the basis of cost जो है measurement के बाद फिर हम उसमें cost reduction भी कर सकते हैं या जो requirements है उसको हम देख सकते हैं। So in standard costing अगर हम बात करें तो standards of cost are determined एडवांस में, हम उनको पहले से तैयार करते हैं एंड देन बाय कंपेयरिंग देम विद एक्चुअल कॉस्ट, और उसके बाद फिर एक्चुअल कॉस्ट के साथ उसका कंपैरिजन कर लेते हैं जिससे कि द फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन ऑफ एफिशिएंसी कैन बी डिटरमाइंड। उसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपैरिजन वी एनालाइज फेवरेबल और अनफेवरेबल conditions of cost in the organizations. And similarly, budgetary control system also helps in the measuring the work performance of the organizations. तो इसके आधार पर हम केवल बजटरी कंट्रोल जो दूसरा सिस्टम है, एनालिसिस टेक्निक है, टूल जिसको हम कहते हैं, वो भी जो है वर्क परफॉर्मेंस को मेजर करने में काफ़ी हद तक रोल प्ले करती है। सो इस तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्पफुल हो सकती है। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल. So basically efficiency of the management, it depends upon its effective control, and from this point of view also management accounting has its specific role. तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को देखना चाहते हैं तो उसकी ये डिपेंड करता है पार्टिकुलरली कि इट्स उसके इफेक्टिव कंट्रोल को। तो जितना ज़्यादा कंट्रोल किसी ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिव कंट्रोल होगा उतना ज़्यादा हमारी जो इफिशिएंसी वो इंक्रीज होती है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है यहाँ पर एक स्पेसिफिक रोल प्ले करती है। ये इसलिए होता है, बेसिकली देखते हैं कि हम आज के ज़माने में नाउ डेज फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड हैज़ बिकम एन कंटिन्यूस प्रोसेस। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको हम रोक नहीं सकते। तो हमेशा हर एक पॉइंट पर कंट्रोल करते रहना चाहिए। लगातार जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल की एक्टिविटीज़ को प्रोसेस को रन करता है, जिसके कारण एक इफेक्टिव कंट्रोल तैयार होता है और ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल मैनेजमेंट, एक एफिशिएंट जो सिस्टम है वो डेवलप होता है। तो इफिशिएंसी जो है पार्टिकुलर मैनेजमेंट की वो डेवलप होती है। सो इन दिस कंटेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट इज नेसेसरी दैट complete and detailed information in respect of the execution of every aspect of the business should be collected. तो हमें देखना पड़ेगा कि हर एक एस्पेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट होनी चाहिए और कंप्लीटली इंफॉर्मेशन कलेक्ट होनी चाहिए। तो अगर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल्स इंफॉर्मेशन को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो जिससे जो एग्जीक्यूशन होगा वो काफ़ी इफेक्टिव बनेगा और जो एस्पेक्ट है वो कंटिन्यूसली हमारी प्रोसेस में चलते रहते हैं। तो देयर
आफ्टर इट शुड बी प्रॉपरली एडिटेड एंड एनालाइज्ड। फिर उसके बाद हम उसको एडिट कर सकते हैं और एनालाइज करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस द मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन रेंडर वैल्यूएबल सर्विसेज इन दिस एस्पेक्ट्स। और उसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंटिन्यूअस एनालिसिस द मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन रेंडर द वैल्यूएबल सर्विसेज इन द पर्टिकुलर सिस्टम। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आती हैं। अनदर फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट या रोल जिसको हम कह सकते हैं वो है इम्प्रूव्ड सर्विस टू द कस्टमर। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम देखा जाए तो। द इंस्टॉलेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल थ्रू द मैनेजमेंट अकाउंटिंग leads to reduction in cost and price and maintenance of a standard level of quality of goods produced and services rendered। तो अगर हम सर्विसेज जो है कस्टमर्स की इनको इम्प्रूव करते हैं, तो इम्प्रूव कैसे करेंगे? अगर हम किसी का पर्टिकुलर सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वेरियस कंट्रोल जो है उनको हमें लगाना पड़ता है। इसके अलावा जो अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो रिडक्शन इन कॉस्ट या और प्राइस की बात करते हैं, जिससे मेंटेनेंस करेंगे तो एक स्टैंडर्ड लेवल जो है इस प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विसेज का वो कस्टमर्स को मिलेगा, जिससे कि हमारी सर्विसेज जो है वो इम्प्रूव होती हैं। और एफर्ट्स जो अगर हम करते हैं, एफर्ट्स आर मेड टू अचीव द प्रोडक्शन टारगेट्स। इसके अलावा जो एफर्ट्स हैं वो प्रोडक्शन टारगेट को अचीव करने हैं। ऑल दीज रिजल्ट्स इज इन इम्प्रूव सर्विसेज टू द कस्टमर्स। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे जो हमारी सर्विसेज हैं वो पार्टिकुलरली कस्टमर्स रिलेटेड सर्विसेज है वो हमारी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती हैं। देन सिक्स्थ पॉइंट है आपका मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रोल और सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइजिंग बेसिकली द थ्रस्ट ऑफ द वेरियस टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू कंट्रोल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली जो मैनेजमेंट का जो मेन टर्म होता है, मेन थ्रस्ट होता है वो है कंट्रोलिंग द कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट कंट्रोल करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोलिंग सिस्टम देन वी इम्प्रूव द प्रॉफिट और मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। अगर कॉस्ट हमारी रिड्यूस होती चली जाती है तो सपोज करिए कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट की जो इनिशियल कॉस्ट है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप हमारे होते हैं तो वहाँ हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। बट जैसे जैसे हमारा टाइम पास होता चला था, पासिंग द टाइम देन वी गेट reduce the cost of the production and other things, labor cost, effective or material cost, transaction, transportation cost, etc. So as we get the experiences from the market and as we get the comparison from the various suppliers and other things, then the cost will be reduces and the profit may be increases. So maximizing the profit is another important aspect or significance of the management accounting. So here it all results in maximizing the profit if we control the cost of production and increase the operational efficiency. Second thing है efficiency को increase करना। तो जितनी ज़्यादा production efficiency, operational efficiency increase होती है और cost जो production reduce होती है, उतना ज़्यादा हमारी organization का जो profit है वो increase होता चला जाता है। Then another important point is prompt and correct decision. This point or this is the important aspect or important role play in the management accounting system. So basically management accounting provide continuous information and analyze to various levels of management in respect of the various aspect of business operations. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर हम प्रॉम्प्टली करते हैं और करेक्ट डिसीजंस अगर हमें कर रहे हैं तो उससे पहले हमें कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। और कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन जब हमारी कलेक्ट होती रहती है तो एनालिसिस भी हमारी कंटिन्यूसली उसमें चलती रहती है। तो जितनी ज़्यादा प्रॉम्प्टनेस, करेक्टनेस हमारी इंफॉर्मेशन में होती है एट द टाइम ऑफ कलेक्शन और एट द टाइम ऑफ एनालिसिस, देन उतने ज़्यादा जो है हमारी जो एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है वो डेवलप होती है। Or it also helps in prompt and correct decision making by the management in various business operations activities. So on the basis of this हम कह सकते हैं कि एक prompt and correct decision making is based on the correct and prompt collection of data and analysis of data. Then eighth point is the last important point, reduction in business risk. Reduction in business risks is also play an important role in the management accounting. Basically the collection and analysis of historical information in management accounting provides the knowledge to the management in respect of nature
of fluctuation and their causes and effects also. तो हम कह सकते हैं कि रिडक्शन इन बिजनेस रिस्क, जितना ज़्यादा हम प्रॉम्प्ट और करेक्ट डिसीजंस और डाटा एनालिसिस करते हैं, या हमारी इफिशिएंसी कंट्रोल करते हैं, या हम प्रॉपर कंट्रोलिंग कॉस्ट कंट्रोलिंग करते हैं, और आपकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसीज को इंक्रीज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो बिजनेस रिस्क हैं तो दे विल बी रिड्यूसेस. So, on the basis of these, management can prepare such plans and which may minimize the impact of trade cycles. तो on the basis of this हम trade cycles के जो risk है उनको हम कम कर सकते हैं और reduce कर सकते हैं. reduce करने के साथ साथ जो planning है हमारी वो effective होती है, तो impact जो होगा वो trade cycle का वो कम हमारे business के ऊपर होगा. और सीजनल फ्लक्चुएशन यहाँ पर देखते हैं हम, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो सीजनल फ्लक्चुएशन के कारण उनके रिस्क इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं, बिकॉज जो प्रोडक्शन जो होता है सीजनल, जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो मार्केट में सीजन्स में ही उनकी सप्लाई होती है, डिमांड होती है. बट जो कॉस्ट है वो पार्टिकुलरली अगर हम फ्रिज बनाना है तो वो बेसिकली गर्मियों में से जो समर है, समर्स में आपको बहुत ज़्यादा फ्रिज या रेफ्रिजरेटर या कूलर एंड एसीज का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है. बट उनका जो प्रोडक्शन है वो समर से पहले ही हमें उसे तैयार करना होता है. तो अगर हम अच्छे तरीके से मार्केट के एनालिसिस कर लेते हैं तो इस तरह के रिस्क को हम कम कर सकते हैं, बिजनेस रिस्क को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. So in that all that point I discussed with you, the brief management accounting presents happy blending of two older professional management accounting and which leads to success of business concern through the accounting control and managerial efficiency. तो जितना ज़्यादा हम अच्छे तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो इफिशिएंसीज है और अकाउंटिंग कंट्रोल को अगर हम यूज करते हैं तो एक अच्छा इफेक्टिव सिस्टम जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हम डेवलप कर सकते हैं. Then the limitations of accounting, basically because every subject have some limitations and some drawbacks and disadvantages are also known as the disadvantages of the management. And basically there are different point. अगर हम देखें तो emergence of management accounting has greatly improved the managerial performance, and it has certain limitations also, unless these limitations are taken into account and while using the systems of management accounting. The advantages of these systems cannot be availed properly. Some important limitations of management accounting. The first one is based on financial and cost accounting. Second one, continuity and coordination in operation. Third is not an alternate of management and administration. Fourth is proper knowledge of related subject. Fifth is impact of individual approaches. Sixth is developing the subject, and seventh is expensive system. Eighth, psychological resistance, and ninth, wider scope. Then 10th is no legal backing, etc. So these are the some points which I discuss with you as a limitations or disadvantage of the management accounting. So first one is based on financial and cost accounts. So basically management accounting works or use the financial or cost accounting data as an information for further decision making. So most of the information which we use in management accounting, they derived from the financial accounting and cost accounting and other historical data. So hence the correctness and effectiveness of managerial decision is properly depends on the greater extent of depends upon the fairness and accuracy of these original records. तो हम ये एक लिमिटेशन है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ कुछ नहीं कर सकता कि जो भी इंफॉर्मेशन या हिस्टोरिकल डेटा या रिपोर्ट्स और एनालिसिस हम करते हैं वो सब जो फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हमें प्रोवाइड करती है उसी के आधार पर हम आगे की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं. अगर ये डेटा हमारा करेक्ट होता है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास सही रूप में मिल जाती है, तो हमारी जो एनालिसिस है वो भी प्रॉपर हो सकती है. तो एक लिमिटेशन है, अगर हम नहीं प्रॉपर बेस जो होगा उसका बेस अगर हमारा कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं आगे की जो फाउंडेशन के बाद जो बिल्डिंग है वो भी कमजोर हो सकती है. Second thing is आपकी continuity and coordination in operation. This is another important limitation, continuity and coordination in operation. So basically conclusion or decisions derived by management accounting or accountant are significant
only when they are properly executed at all level of business operation, and it requires continuous and coordinated efforts at all levels of management. तो बेसिकली कंटिन्यूटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत जरूरी है यहाँ पर, जो कि कंक्लूजन या किसी भी डिसीजंस के पर जब हम पहुंचते हैं एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो वहाँ पर एक जो है आपका जो डिसीजन है वो एक सिग्निफिकेंट जो रोल है वो प्ले करता है, बट व्हेन दे आर प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, अगर इनको हम सही तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे एट ऑल लेवल्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन और ऑल departments of business and all the organizations, so then it requires the continuous and coordinated efforts at all levels of management and all uh, departments and other things. So this is a important aspect, limitation. So अगर हम limitations में देखें ना, continuity नहीं रहती है या coordination नहीं होता है किसी भी departments के बीच में या किसी भी organization में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है एक drawback हमें देखने को मिलता है कि अच्छे decisions जो है या efficiency जो है वो हमारी improve नहीं हो सकती है। और चाहे वो जैसे कॉस्ट कंट्रोल है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि वो कॉस्ट कंट्रोल किस तरीके से कर सकता है, कॉस्ट कंट्रोल इन लेबर कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट है, फ्लेक्सिबल फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो इस तरह से बहुत सारी जो कॉस्ट है उनको कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम देखते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल किया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लाइक देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर उन सब एक्टिविटीज में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो भी कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जो है वियर करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ये भी एक लिमिटेशन बन जाती है। थर्ड थिंग जो पॉइंट है, नॉट एन अल्टरनेट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुड नेवर बी कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेट फॉर द मैनेजमेंट। कोई भी जो टर्म सब्जेक्ट के रूप में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट और जो है एडमिनिस्ट्रेशन का अल्टरनेट नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जस्ट प्रोवाइड द results but not taken the decision. The decision ultimately taken by the management or administration of the organization. So it is merely a tool for management only. केवल मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक टूल के रूप में काम कर सकता है, बट रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज लिमिटेड टू द कलेक्शन, analysis and presentation of data required for various decision, but the answer of decision making and their implementation lies on the मैनेजमेंट। तो जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जो अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, वो डिसीजंस तो ले सकता है लेकिन उनको अप्लाई नहीं कर सकता। अप्लाई कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। और तो जो डिसीजंस हैं वो केवल हमारे इसीलिए इसको एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अल्टरनेट नहीं कहा जा सकता है। एंड फोर्थ वन इज प्रॉपर नॉलेज ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट। So this is another limitation, proper knowledge of related subject. तो यहाँ पर हम emergence of management accounting has an account of development of various other subjects such as statistics, principle of management, economics, quantitative techniques and engineering, managerial economics, etc. तो ये भी एक सब्जेक्ट है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी सब्जेक्ट के रूप में है और डेवलपिंग सब्जेक्ट है। अभी ऐसा नहीं कि प्रॉपर तरीके से फॉर्म में है और इसकी कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस भी नहीं है, मतलब हर एक आदमी अपने तरीके से इसको कर सकता है। सो यहाँ पर ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा और या इकोनॉमिक्स है या स्टैटिक्स है या अनदर सब्जेक्ट्स हैं, तो वो प्रॉपर नॉलेज की आपको जरूरत पड़ती है। सो द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट accounting can be useful if persons connected with decision making process have proper understanding not only of management accounting but of the related subject also. अगर कोई व्यक्ति जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम करता है तो उसको केवल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नॉलेज होगी तो वो प्रॉपर अच्छा काम करेगा, ये जरूरी नहीं है। अगर वो उससे रिलेटेड बाकी सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या इकोनॉमिक्स है, आपकी स्टैटिक्स है, इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनकी इसको पर्टिकुलरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं। तो इसलिए उन सब की प्रॉपर नॉलेज भी होना जरूरी है। अगर वो नॉलेज नहीं है तो एक इफेक्टिव जो एनालिसिस वो नहीं कर सकता। देन फिफ्थ वन इज इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल अप्रोचेस। दिस इज अनदर लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल अप्रोचेस। There is always an element of human judgment in all information and interpretation
furnished by the management accounting. तो कहीं पर भी जो भी हम डिसीजन लेते हैं या कोई बहुत सारे ह्यूमन जजमेंट के जो है वो पार्टिकुलरली इंफॉर्मेशन और इंटरप्रिटेशन में आ जाते हैं और ये सब ह्यूमन टर्म क्योंकि मैनेजमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो सब जो है इंडिविजुअल अप्रोचेस भी यहाँ पर कई जगह इम्पैक्ट उनका देखने को मिलता है. Like individuals' approaches or personal prejudice of all those persons whose services are availed in this process can affect the objectivity of decisions. तो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल्स हैं वो उनकी अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स या इंडिविजुअल्स जो रिक्वायरमेंट्स है उनके जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करने में जिसके कारण कई बार बायसनेस क्रिएट हो सकती है और जो है इम्पैक्ट जो है इंडिविजुअल अप्रोचेस का मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको देखने को मिलता है. तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आपको मिलती हैं. 6 पॉइंट इज डेवलपिंग सब्जेक्ट है, जैसा कि हमने आपको अभी भी ऊपर के पॉइंट में भी कहा कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग सब्जेक्ट के रूप में है क्योंकि नया टर्म है और अभी 65-70 ईयर्स इसको आए हैं और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, कोई रूल्स एंड प्रिंसिपल्स नहीं है. बहुत सारी टूल्स टेक्निक्स जो है अदर सब्जेक्ट्स ली गई हैं जो इसको जो है इसको डेवलप करती है, तो इसलिए डेवलपिंग सब्जेक्ट के रूप में है. तो यहाँ पर जो इट इज स्टिल इन इनएफिशिएंसी स्टेज एंड देयर इज ए कंटिन्यूअस डेवलपमेंट is theirs and improvement is there and its techniques and analytical tools and etc. So this situation naturally limits the utility of this subject as tool. तो यहाँ पर एज ए टूल जो है इसको लिमिट्स कर देती है कि हाँ टूल के रूप में तो हम यूज करते हैं बट वो टूल्स जो है दे कम्स फ्रॉम द वेरियस अनदर सब्जेक्ट्स और अनदर स्ट्रीम्स. सो डेवलपिंग सब्जेक्ट है तो ये ध्यान रखना है. अनदर वन इज एक्सपेंसिव सिस्टम. तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट लिमिटेशन बिकॉज स्मॉल जो कंसर्न्स है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को डेवलप नहीं करती या वो अपने यहाँ उसको अप्लाई नहीं करते हैं बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव सिस्टम. एक्सपेंसिव कैसे होगा? Installation of management accounting is a costly affairs because it cannot be profitability used in small business concerns and जहाँ पर आपके पास अकाउंटेंट की पोस्ट है आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं रख सकते हैं या अनदर सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ों को हम नहीं दे सकते. अगर हम करते हैं तो हमारा जो सिस्टम वो डेवलप होगा तो उसमें फिर एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाते हैं जिसके कारण बहुत सारी जो कॉस्ट है फिर वो इंक्रीज हो जाती है. तो कॉस्ट कंट्रोल और ये सब चीज़ों का कोई मायने यहाँ नहीं रहता है. तो एक एक्सपेंसिव सिस्टम है, नया सिस्टम है तो थोड़ा ये ध्यान देना पड़ता है. अनदर इज साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस. साइकोलॉजिकल जो रेसिस्टेंस है बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो इंस्टॉलेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इट इन्वॉल्व्स अ बेसिक चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप. तो एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है कि अगर हम नया सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं या नए सिस्टम को अडेप्ट कर रहे हैं तो हमें पुराने सिस्टम में चेंजेस करने होते हैं. जैसे कि आप लाइक अगर किसी सिस्टम कंप्यूटर में जाएं या मोबाइल में जाएं तो कोई एप्लीकेशंस आप डाउनलोड कर रहे हो तो वहां पर वो पूछता है कि क्या यू कैन अलाउ द सम चेंजेस इन योर सिस्टम एंड एक्सेट्रा. तो इसी तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी जब हम अप्लाई करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो कुछ ना कुछ चेंजेस मांगता है. तो ये साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है कि ऐसा होगा एंड वर्क कल्चर में भी चेंजेस आ सकते हैं. तो मोर एंड मोर एम्फेसाइज इज लेड ऑन प्रॉपर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, इवैल्यूएशन ऑफ ईच एक्टिविटी एक्सेट्रा. तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में. सो इट में लीड टू साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस फ्रॉम सम ग्रुप्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज आल्सो देयर. तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और कुछ एम्प्लॉइज ग्रुप्स में भी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं और जो पार्टिकुलरली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. Then ninth one is wider scope. Wider scope because the scope of management accounting is very wide and broad based and this may create some difficulties in the implementation of process. तो स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि कई अन्य रिलेटेड सब्जेक्ट से कनेक्टेड है और बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की हुई है. इंडिविजुअली अपना कुछ इसमें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, बजटिंग and forecasting and economics and statistics etc. So lots of things are there. The scope is wider but ये लिमिटेशन है क्योंकि इसमें कोई लिमिटेड एरियाज नहीं है, एरियाज फिक्स नहीं है, कहीं पर भी हम कोई भी टेक्निक या टूल्स का यूज कर सकते हैं. नो लीगल बैकिंग भी यहाँ पर देखने को मिलती है लिमिटेशंस में. सो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑप्शनल एंड इट हैज नो लीगल बैकिंग क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई कर रहा है.
तो ये बेसिकली ऑप्शनल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है तो उसको रन कर सकती है, अप्लाई कर सकती है, अडेप्ट कर सकती है. इफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इंटरेस्टेड देन देर इज no necessary or no compulsory, and so it leads to a casual attitudes towards the management accounting in all organizations. So on the basis of these things, so there are some limitations I discussed with you. So, and some important point, if you have any problems on some, then ask me. Okay, thank you.